Todos os dias há um massacre nesta cidade. Uma bomba explode ou uma mão desmembrada é atirada para o jardim de alguém, como uma advertência. Já ninguém se sente seguro. Enquanto os traficantes de heroína trabalharem abertamente nas esquinas e os assassinos dispararem em plena luz do dia, a polícia continuará a não estar disposta a detê-los. Pelo menos 4 guerras muito diferentes estão a acontecer, entre sunitas e xiitas, entre os cartéis de drogas, entre os partidos políticos e também entre criminosos comuns e a polícia. Tiziano Terzani escreveu estas palavras sobre Karachi em 1995. Pouco mudou desde então, a não ser o facto de esta cidade portuária, com os seus 18 milhões de habitantes, ser hoje o maior centro populacional e comercial do Paquistão. Como é a vida em Karachi para uma pequena comunidade cristã na paróquia de São Filipe? According to a recent newspaper report, was more than 2 million illegal immigrants in Karachi. That's a very big number. It has an impact on the overall population. It has an impact on many other things, on the crime situation, on drugs, on smuggling. इस शहर के अंदर जो मनशियात बेचता है वो अंडरस्टूड है कि वो बत्ता माफिया भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, उसमें ये तमाम चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी मजहबी जमातों ने भी यही सिलसिला पकड़ लिया है, तो इसमें उनके अपने टेरर विंग हैं, टारगेट किलिंग कर देने ये। और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इस वक्त कराची में 56 के करीब इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द हैं जो टारगेट किलर हैं, जिनको तस्वीर दिखाओ और शाम को बॉडी ले लो। और यह सिलसिला चल रहा है। रोज़ 15-16 लाशें कराची के लिए एक वो बन गई। और सबसे बड़ा अलमिया कराची के अंदर ऐसा है कि यहाँ जहाँ कोई बंदा मरता है, जो कत्ल हो जाता है, उसके 10 मिनट बाद वहाँ दुनिया ऐसे घूम रही होती है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ कोई इंसान मरा ही नहीं। ऐसा सिलसिला यहाँ होते ही नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट का इस वक्त कराची शहर के अंदर बिल्कुल किसी किस्म का कोई रोल नहीं। कराची शहर में ये दहशतगर्दी की जो लहर है, ये गुज़िश्ता 10 सालों से जोर पकड़ गई है। Os assassinatos seletivos são principalmente o resultado de ajustes de contas de partidos políticos, grandes empresas, traficantes de drogas e grupos religiosos fundamentalistas. A realidade das ruas de Karachi também inclui explosões imprevisíveis que matam e mutilam muitas pessoas inocentes. Embora não seja dirigida contra os cristãos, a violência crescente afeta-os inevitavelmente. Durante 5 meses de 2012, foram atingidos 5 rapazes em Essanagri, um dos bairros pobres maioritariamente cristãos de Karachi. Uma das vítimas foi Faisal, um jovem com menos de 25 anos, que tinha uma pequena loja de acessórios para telemóveis perto da sua casa. वो अपनी शौक से बैठा है। 2 अंदर डकैती आए ने, वो आन के डकैती कर लग पे ने। गन पैंट उन्होंने कोल, मैं तो अचानक ही आया तो उन्हें मैनू भी गन पैंट विखाई। मैं फिर एक जफ्फा मार लिया। जिवें जफ्फा मार लिया उवें उन्हें मेरे बेटे ने गोली मार दी। जिन्हें को पैसा सी वो नस गया, जिन्हें गोली मारी फिर दोबारा हम पकड़ लिया से। अभी फिर उस लिए अस्पताल लै गए। मेरे बेटे ने उन्हें गोली मार दी थी। Essanagri, you mentioned, it's a very large, I think what you would call it a slum, or let us say a large number of poor people living in a certain part of the city. The city has grown. So there are land grabbers who are interested in this area. There are drug pushers who come around selling drugs. There's the problem of illegal sale of alcohol. There are money lenders who prey on the poor who need money. They lend them money at very high rates, which then becomes difficult for the poor man to pay back. Most of our Christians are mostly economically, socio-economically on the lower level of society. छोटे छोटे घरों में रहते हैं, सांस अच्छे तरीके से नहीं ले सकते, खाना कोई हाइजीनिकली जो है सेहत का मंद खाना नहीं खा सकते,
और लोग ज़्यादातर बीमार रहते हैं, किसी को कोई दिल का मर्ज़ है, किसी को टीबी का मर्ज़ है, या किसी को कोई और मर्ज़ लेके बैठा हुआ है। ये लोग ज़्यादातर सफाई का काम करते हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ टीचर्स हैं, लेकिन तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अंडरपेड हैं। उनकी तनख्वाह जो है बहुत Manter boas relações com os vizinhos muçulmanos foi durante muitos anos a norma no Paquistão. Os cristãos não são recém-chegados a esta parte do mundo. São provenientes dos mesmos grupos étnicos que os outros habitantes do Paquistão, embora eles sejam um grupo minoritário religioso de 2%, a par de hindus, de sikhs e da minoria xiita muçulmana. तालिबान ने काफ़ी नुकसान किया है पाकिस्तान में, ख़ुसूसी तौर पर कराची में, और तालिबान से जान छुड़ाई जा सके, क्योंकि तालिबान अगर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो मसीही या हिंदू या मिनॉरिटीज़ जो हैं वो तो उनके लिए बहुत आसान टारगेट है। तो इसी वजह से करनी पड़ती है कि चूंकि ये एक है कि ऐसा हो सकता है, और थर्डिंग और ये ऐसा सिलसिला भी होता है, फ़ोन किए जाते हैं, बताया जाता है कि आपका ऐसा प्रोग्राम है, तो ऐसा तो इस बिना पे है। लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त मेरा काफ़ी ताल्लुक़ था ना, मुस्लिम दोस्तों के साथ था। हम लोग इकट्ठे घूमते थे, मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, कॉलेज लाइफ में भी, स्कूल लाइफ में भी। लेकिन वक्त के साथ साथ शायद कुछ लोगों के रवैये वो चेंज होते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा फैनेटिक होते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर ईमानी एतबार से। मसीह होना तो बड़ी बात है। जरा कराची च रहना ईसाइयों वास्ते बहुत अजाब है, तो मेरे वास्ते तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि मैं बार बार धमकियाँ लग रही ने, तो इस तरह हो जा, मजहब बदल दे या साढ़े मजहब, बड़िया धमकियाँ लग रही। मैं किसी को दसना मेरी गल तक तबार नहीं करता। कोई साड़ी सुनी पुनी नहीं जा रही। जे असी किधरे थाने जाने तो सानू आंदे ने मुजरम पकड़िया जाए, तो मुजरम नूं असी फिर कुछ करांगे, ये करांगे, तुहाडे सारा पूरा होएगा। लेकिन कोई नहीं सुनी जाती। ये अपने लोगों की सुनते ने, अपने लोगों की कहते हैं, मसीहा की तो सुनते ही नहीं। हर पासे साढ़े लोगों ही दबाते हैं, मसीहा ही दबाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी अक़वाम इकट्ठी रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ अनासिर जो हैं वो जो शरारती हैं, जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान पूरा ही बुरा है या ये पूरा ही वॉयलेंस का शिकार है। लेकिन टोटल वॉयलेंस नहीं है, दहशतगर्दी नहीं है, और सब दहशतगर्द भी नहीं है। इक्का दुक्का की वजह से जो है वो हम जो है वो तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। ना सिर्फ हम मसीह बल्कि दीगर जो अक़वाम यहाँ पर रहती हैं, मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी मसाइल का सामना कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि मसीहों को काफ़ी सारे बनिस्बत दूसरों के मसाइल का सामना है, कारोबार के एतबार से, जॉब्स अपॉर्चुनिटी के एतबार से, या एजुकेशन के एतबार से काफ़ी मसाइल हैं। क्रिश्चियनों के साथ ज़्यादातर तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई टारगेट किया हुआ है। ज़्यादातर जो है वो जो मुसलमान हैं उनकी अच्छी रिलेशन है क्रिश्चियनों से, और जो मुट्ठी भर हैं जो इस
एरियो में बहुत सारी जगहों पे काबिज़ हैं इस मुल्क के अंदर। जो वो लोग जो शिद्दत पसंद कहलाते हैं, वो हैं जो नफ़रत करते हैं और जो चाहते हैं कि वो हम क्रिश्चियनों को पाकिस्तानी नहीं बल्कि वो अमेरिकन समझते हैं। कोई ड्रोन हमला होता है तो फिर वो हमारी बाइबलें जलाते हैं, सलीब को जलाते हैं इस शहर में। हमें वो बताते हैं, जैसे अभी गुस्ताखाना फिल्म का वो चक्कर हुआ। A família de Johnson também se tornou vítima da violência quando 4 homens mascarados, armados com pistolas, facas e tacos, invadiram a sua casa à meio da noite e roubaram todos os seus pertences valiosos. A família viveu momentos muito assustadores. Felizmente, ninguém foi morto. My father is a policeman. Everybody knows that this job is, very critical. It is very dangerous for the person. My mother is also scared. My grandmother is also scared. My sisters, my all siblings, I think my father is the best father in the entire world, because if I would be asking for the life of him, so he will give me his life also. And I pray to God that he may keep my father in his shadow, and he blessed him a lot, and my prayer are always with my father. I love him a lot. I cannot go alone anywhere. In Pakistan, women don't have a lot of freedom. They cannot go outside after 11 p.m. They are very dangerous. They were raped, or they were killed, or they were kidnapped. I studied in St. Joseph's College, which is only for women, and it is in Karachi only. And I just completed my intermediate, so I've cleared in all my exams, and now I'm waiting for the mark sheet. यार नहीं, मुझे मार्कशीट लेनी थी, ये लोग शूट कर रहे हैं, इसकी यूनिफॉर्म में आना पड़ा. Girls should be educated. If boys are getting knowledge, they are achieving anything for the future, for their betterment life. So I think girls have to study a lot. They have to struggle a lot. I would like to be a lawyer because I like the personality of lawyer. They wear a gown and with a hat and the registers in their hand. But my father wants to see me as a professor, and he struggled for me a lot. But if I would be a lawyer, so I would help the women first. There are many Christians and Muslims too in our college, and even Hindus are there. I have a good relation with everybody, with Christians and Muslims too, and we spend a lot of time together. We eat together, we dance together, and we do a lot of fun. Tal como a maioria das paróquias católicas, a paróquia de São Filipe também gera 6 escolas. A maioria dos alunos são cristãos, pobres demais para estudar em escolas de qualidade, mas não faltam muçulmanos que também querem que os seus filhos frequentem as escolas católicas. ज़्यादातर मुसलमान जो हैं वो अपने बच्चों को मसीही स्कूलों में और ख़ुसूसी तौर पर कैथलिक स्कूलों में इसलिए भेज रहे हैं ताकि वहाँ से वो डिसिप्लिन हासिल करें और अच्छी तालीम हासिल करें। पढ़े लिखे अच्छे मुसलमान हैं, वो मसीहों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, और सिर्फ जो मॉर्निंग स्कूल है सेंट फिलिप का, उसमें आधे मसीही हैं आधे मुसलमान हैं, और ये काफ़ी अच्छा माहौल है इन दोनों के दरमियान, दोनों मज़ाहिब के दरमियान।
हमारे अपने जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनको कई बार इन कैथलिक स्कूल्स में दाखिला भी नहीं मिलता। इसी सिलसिले में फिर हमने सेंट फिलिप स्कूल जो है, हमारे कुछ प्राइमरी स्कूल भी ऐसे हैं जहाँ पर मसीही बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे क्योंकि फ़ीसें नहीं देते, हम कई दफ़ा बर वक्त तनख्वाहें भी अपने टीचर्स को नहीं दे सकते। If we have a poor Christian area like a slum area, it will be difficult for the illiterate parents who are daily wage earners who have to work themselves to send the children to school. They will have many excuses. They will say the school is far away. They will say it costs us money to send the children to school. So this is where we try to bring education to the people. स्कूल कोई नहीं जाता थोड़े सो जिन्ने महल्ले दे वारा ने मुंडे ने उन्हां दे बारे च वेखण ने कि केड़े-केड़े महल्ले दा वारा मुंडा स्कूल जाने ते स्कूल जा कपड़े धोने वाले अंकल साफ करने चाहिए सिखाओ। मैं समझता हूँ वो चेंज हो सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं ज़रूर। मेरा ये ईमान है। मैं समझता हूँ कि नौजवानों को मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आप आएँ और मुझे उम्मीद है कि नौजवान जो है वो शौक़ रखते हैं, बहुत कुछ आना चाहते हैं आगे। A convicção de que a difícil situação que as famílias cristãs de Sanagre enfrentam pode mudar, garante que, apesar de um amanhã incerto e de violência crescente, eles não têm intenção de deixar a cidade do medo, como Karachi é às vezes denominada. A comunidade de São Filipe está a crescer e a desenvolver-se. À medida que a construção da primeira igreja se aproxima da conclusão, torna-se um símbolo cada vez mais importante da unidade para esta paróquia em crescimento. हमारे पैरिश में तकरीबन 20,000 लोग हैं और 16 चैपल हैं, छोटे चैपल हैं। कई जगहों पर हमारा अपना चैपल नहीं है, चर्च नहीं है, लेकिन हम दूसरे डिनोमिनेशन के जो चर्च हैं वो इस्तेमाल करते हैं और उनकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसी में हम अपनी इबादत करते हैं। इस पैरिश में हम दो काहिन काम कर रहे हैं, एक फादर विक्टर जॉन और दूसरा मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉपुलेशन के अतबार से कराची का दूसरा बड़ा पैरिश है। The parish church is coming into existence after 40 years of the existence of the parish. So this is a very, very historical event when this church will be blessed and people of this parish will come together as one community. I'm grateful to the donors. It's a great help given to us. But at the same time, these people, according to their abilities, according to their financial situation in Pakistan, they are also contributing. So we are lucky that Church in Need is helping us out. Now, about 80% of our work is complete, and the other 20% work will be completed in 2 months' time. लेकिन हम मसीही होपफुल हैं और पुरुमीद हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर और कराची की तकदीर ज़रूर बदलेगी। और हमारे पैरिश चूँकि कराची का हिस्सा है और कराची का दरमियाना हिस्सा है, मरकज़ी हिस्सा है, ज़रूर हमारा पैरिश भी तरक्की करेगा। जिस तरह हम तालीम में काम कर रहे हैं, हम लोगों की जो फेथ फॉर्मेशन है उस पे काम कर रहे हैं, हम लोगों की समाजी सूरत हाल पर भी काम कर रहे हैं। जना 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 तेरा है जना 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 जना
है, गरीबी है, बीमारी है, फिर भी ईमान मजबूत है, उनका फेथ जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है उसमें। उनका ईमान में देख के मैं बड़ा मुतासर होता हूँ। खुदा करे कि वो आगे आगे बढ़ें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, मसीह ईमान में ज़िंदगी गुजारें। मसीह होना एक बड़ी वड्डी गल है। मसीहत का तो नाम ही लेना बहुत मुश्किल है। मसीहत दे विच ही पैदा होए, मसीहत दे विच ही रहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं मतलब फ़ख्र महसूस करूँगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मसीही हूँ मैं। तो मतलब मसीही होना, मसीही ही की तरह होना, तो इस मुल्क के अंदर मसीही होना मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। और मैं फ़ील करता हूँ कि मैं एक अच्छा मसीही बनूँ, वैसे ही बनूँ जैसे मसीही था। हमारी तालीम भी यही है कि दर्स है कि ये माफ़ करने की। यीशु मसीह ने सलीब पर लोगों को माफ़ किया, जिन लोगों ने उन पर जुल्म किया उसको माफ़ किया। और मैं समझता हूँ कि एक मसीही ही मोहब्बत है।